BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. لاہور میں 2 گرجا گھروں پر خودکش حملوں کے ایک روز بعد مسیحی برادری کا احتجاج جاری. بڑے پیمانے پر غم و غصے کی لہر. پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر نے اپنے والد کے قتل کے لیے خون بہا کی پیشکش مسترد کر دی. آخر کیوں؟ کہ یہ خود کیا اپنے باپ کے خون کا سودا خود کریں گے؟ کون اپنے باپ کے خون کا سودا کرے گا؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو کسی بھی پاکستانی کے خون کا سودا نہیں کروں گا. اور دیکھیے دلی میں اردو زبان کے ادیبوں، شاعروں اور اس زبان کو چاہنے والوں کے 2 روزہ اجتماع کی جھلکیاں. لاہور کے علاقے یوحنا آباد میں گرجا گھروں پر حملوں کے بعد علاقے میں کشیدگی برقرار ہے. پنجاب بھر میں مسیحی آبادی نے یوم سوگ منایا. مشنری اسکول بند رہے اور کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. دن بھر دعائیہ تقریبات بھی منعقد کی گئیں. یوحنا آباد کی صورتحال کا احوال شمائلہ جعفری سے. میں اس وقت لاہور کے علاقے یوحنا آباد کے اسی کیتھولک چرچ کے باہر موجود ہوں جہاں پر کل خودکش دھماکہ ہوا تھا. کل ہونے والے 2 دھماکوں کے بعد آج اس آبادی میں جو فضا ہے وہ سوگوار ہونے سے زیادہ اس وقت لوگوں کے اندر جو ہے وہ غم و غصے کا عنصر زیادہ پایا جا رہا ہے. اور پورے شہر سے مختلف جلوسوں کی صورت میں کرسچن کمیونٹی کے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، صلیبیں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان کا گلہ یہ ہے اور غصہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے حکومت ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے. بالکل یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کل دھماکہ ہوا ہے اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا رکشے میں آیا اور اس وقت جبکہ چرچ کے اندر سروس ہو رہی تھی اس نے اندر داخل ہونے کی تیزی سے کوشش کی اور یہاں پر بالکل اس کو سیکیورٹی گارڈز نے روکا اور اس کو تلاشی دینے کو کہا، جس پر اس نے انکار کیا تو ان کی جھڑپ ہوئی اور جس کے بعد اس لڑکے نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر مین روڈ پر جہاں سے یوحنا آباد کی آبادی شروع ہوتی ہے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، لیکن یہاں پر اندر آنے کے لیے آنے کے بعد جو ساری سیکیورٹی ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے اپنے ہاتھ میں. انہوں نے جگہ جگہ پہ بیریئرز لگائے ہوئے، تاریں لگائی ہوئی ہیں اور آنے والوں کو چیک کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ چرچ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کرسچن کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں اور یہاں پر ایک دعائیہ سروس جاری ہے ان لوگوں کے لیے جو کل کے دونوں دھماکوں کے اندر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں کے جو ہے جنازے ابھی نہیں کیے گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کی تدفین کل ہوگی. شمائلہ جعفری، BBC نیوز، لاہور. پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر نے اپنے والد کے قتل پر خون بہا کی پیشکش مسترد کر دی ہے. سابق گورنر کو توہین رسالت کے مقدمے کی ایک عیسائی ملزمہ کی حمایت پر قتل کیا گیا تھا. ان کے بیٹے شان تاثیر نے اس قتل کے لیے مذہبی جماعتوں کی طرف سے خون بہا کی پیشکش مسترد کر دی ہے. انہوں نے BBC کے شاذیب جیلانی سے اس موضوع پر خصوصی بات چیت کی. دیکھیں، میں ان تمام جماعتوں سے اور جو ان کے قائدین اس پریس کانفرنس پر موجود تھے، میرا ان سب سے سوال ہے کہ یہ خود کیا اپنے باپ کے خون کا سودا خود کریں گے؟ کون اپنے باپ کے خون کا سودا کرے گا؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو کسی بھی پاکستانی کے خون کا سودا نہیں کروں گا. باپ تو پھر بھی بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ پیشکش آگے بڑھے اور یہ جماعتیں اپنا وقت ضائع کریں اور اپنے پیسے ضائع کریں، وکیلوں کی فیس دیں یہ ایسا آفر دینے کے لیے، میں چاہتا ہوں میں پہلے ہی انہیں بہت واضح طور پر بتا دوں کہ ایسا آفر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا آفر انٹرٹین بالکل نہیں ہوگا. یہ جماعتیں جو ممتاز قادری کی حمایت کرتی ہیں، ان سے ہمدردی کرتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے وفادار شہری ہیں. انہوں نے جو کیا وہ اپنا فرض نبھایا. ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کے سامنے. دوسرا، کسی بھی قانون کے تحت کسی شہری کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. وہ وفادار شہری تو بالکل میری نظر میں نہیں ہے. اگر اس کے وکیل ممتاز قادری کے اپیل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں تو ان کا پورا حق ہے، بالکل کریں.
खौफ के जिस साए में लोग यहाँ पे रहते हैं, आपको लगता है कि इस पर बहस इस मुल्क में मुमकिन भी है? देखें, जुल्म और ज़्यादती मेरे ख़ानदान के साथ हुई है, मेरे बाप को मारा गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के खातिर, आपके बच्चों की खातिर, हमारी आने वाली नस्लों की खातिर पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमाए इकराम से सच्चे दिल से आजिज़ी के साथ उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ जहाँ नामूस रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है उसमें अपना किरदार अदा करें, एक फोरम पर आएँ, इस पे ओपन डिबेट करें। आपने कहा बात तो करनी पड़ेगी, हाँ जी, हिम्मत कौन करेगा? जो कह रहा है कि ब्लास्फेमी लॉ पर डिबेट नहीं हो सकती, मेरा उनसे सवाल है, और ये बहुत सच्चे दिल से मेरा उनसे सवाल है। मैं चाहता हूँ कि मुझे समझाएं, एक फोरम पर मुझे मिलें और मुझे समझाएं कि किस तरह एक कानून जो अंग्रेज़ों ने 1927 में बनाया था, आमिर थे अंग्रेज़, नाजायज़ हुक्मरान थे हमारी धरती के, उन्होंने 1927 में बनाया था, फिर 1981 में एक और नाजायज़ हुक्मरान जनरल ज़िया उल हक ने उसमें तरमीम की थी। ऐसे कानून पे किस तरह हो सकता है कि बात नहीं हो सकती? ये मेरा सवाल है उनसे। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा ये सवाल पूछ के, मैं कुछ अपनी तरह राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। ये मेरा ओपन सवाल है उलमा इकराम से, इन सुन्नी जमातों से, इस सवाल का वो जवाब दें। यहाँ से फिर बात आगे बढ़ाते हैं कि बात इन पे हो सकती है कि नहीं। शान तासीर से शाहजेब जिलानी बात कर रहे थे। और अब कुछ दीगर अहम मौज़ूआत पर नज़र डालते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को आज 10 दिन के बाद अवाम में देखा गया है। उन्होंने आज किर्गिस्तान के सदर से मुलाकात की, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते उनकी जानिब से कई मुलाकातें मनसूख किए जाने के बाद ये अफवाहें गर्दिश करने लगी थीं कि शायद वो बीमार हैं। क्रेमलिन ने इन अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया था। जनूबी अफ्रीका में एक बेखौफ पेंशनर ने अपनी 100वीं सालगिरह एक खास अंदाज से मनाई, स्काई डाइविंग करके। जॉर्जिना हाईवुड ने अपनी पहली स्काई डाइव अपनी 92वीं सालगिरह पर की थी और उनके एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुए। इस हफ्ते वो शार्क्स के साथ केज डाइविंग करेंगी। अमरीका और ईरान को जौहरी मामलात पर किसी किस्म के मुआहदे तक पहुंचने से पहले ही शदीद तनकीद का सामना है। सऊदी अरब के शहजादा तुर्की अल फैसल ने BBC से बात करते हुए कहा है कि अगर ईरान को जौहरी प्रोग्राम जारी रखने की इजाज़त मिली तो सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक भी एटॉमिक ईंधन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तफसील के साथ ऐमन ख्वाजा। कई दिनों तक जारी रहने वाली पेचीदा सफारतकारी के बाद इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। दोनों फरीकों का कहना है कि वो मुआहदा चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को ठोस सबूत चाहिए कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम उसी मकासद के लिए है जिसका वो दावा कर रहा है, यानी पुरअमन मकासद के लिए। अगर ये पुरअमन है तो इसे होने दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये मुमकिन होगा। इसराइल की तरह बाज़ खलीजी रियासतों को भी खदशात हैं कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के तहत हथियार बना रहा है, और यमन, शाम और इराक में शिया जंगजुओं को मदद करने की वजह से भी इन ममालिक को तशवीश है। तवक्को है कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात 31 मार्च तक किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इस मुआहदे की राह में कई रुकावटें हैं, खास तौर पर यूरेनियम अफजूदा करने का मामला। यूरेनियम से हथियार बनाने के साथ साथ बिजली भी पैदा की जाती है, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान की यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत को महदूद रखना चाहते हैं। इस बात पर अमेरिका और ईरान दोनों को अंदरूनी तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो दूसरे को रियायत दे रहे हैं। 47 अमरीकी सेनेटर्स ने इस खत में इस मुआहदे की मुखालफत भी की। लेकिन इस मुआहदे पर पहुंचने से पहले खित्ते के एक अहम फरीक सऊदी अरब ने भी तशवीश जाहिर की है। ईरान का किरदार खित्ते में मनफी रहा है, खास शाम की बात हो, यमन, फ़लस्तीन, बहरीन या इराक की बात हो। उनके बकौल इस मुआहदे के बाद और ममालिक भी एटॉमिक ईंधन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे।
अगरचे सफारतकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में किसी किस्म के मुबहम मुआहदे पर पहुंचने के इम्कान तो हैं, लेकिन किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा। एमन ख्वाजा, BBC न्यूज़। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, दिल्ली में उर्दू ज़बान के चाहने वालों के इज्तिमा जश्न रेख्ता की झलकियाँ, और उस जश्न की झलकियाँ भी जिसमें कुछ देर के लिए पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट शायकीन मिलकर नाचे। ये सब एक मुख्तसर वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। शेर व अदब की दुनिया की बड़ी हस्तियाँ एक जगह जमा हों तो ज़बान के चाहने वालों को और क्या चाहिए। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए जश्न रेख्ता के नाम से दिल्ली में 2 रोज़ा महफिल हुई, जिसमें गोपीचंद नारंग, जावेद अख्तर, ज़िया मयुद्दीन, केदारनाथ सिंह, शम्सुर रहमान फारूकी और अमजद इस्लाम अमजद जैसी शख्सियात ने शिरकत की और उर्दू में जासूसी अदब, गज़ल, अहद ब-अहद से लेकर फ़िल्मों की ज़बान उर्दू जैसे मौज़ूआत पर बात हुई। जश्न रेख्ता की एक झलक आप भी देखिए, दिल्ली से सुहेल हलीम के साथ। उदास उदास जिस्म, कमल होठ, मरमरी बाहें, मेरी तबाही पे लिखी किताब यानी तू। ये उर्दू ज़बान और ज़बान के दीवानों का जश्न था। अफसोस अफसोस शाही न बना तू, देखे ना तेरी आँख ने फितरत के इशारा। यहाँ सब की आवाज़ सुनी गई। उर्दू के चाहने वालों का जश्न है। उनका क्या है? 2 दिन तक गज़लों, कव्वालियों, दास्तान गोई और बैतबाजी की महफिलें जमी और उर्दू के मुख्तलिफ पहलुओं पर संजीदा गुफ्तगू हुई। मैं वो पागल हूँ, दीवाना हूँ, इसे उर्दू से मोहब्बत है और मेरी ख्वाहिश थी कि उर्दू को दूर दराज तक पहुँचाया जाए। क्यों परेशान हो मेरी गम को बढ़ाने के लिए। आम तासुर ये है कि उर्दू हिंदुस्तान में दम तोड़ रही है। सुबोध लाल जैसे उर्दू के चाहने वालों के लिए इसकी वजह किसी से छुपी नहीं है। अगर उर्दू को पॉपुलराइज करने की कोशिश की जा रही है तो वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि एक बुग़्ज़ है, एक तासुब है जिसके तहत लोग उर्दू के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और वो शायद तासुब ये है कि लोग समझते नहीं कि ये सही मानों में हिंदुस्तानी ज़बान है, इसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। लिखता वेबसाइट उर्दू की विरासत को यकजा करने और लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। मैं इस चीज़ को इतना इस हद तक मुतासिर हुआ हूँ यहाँ ये इस पिछले हफ्ते में कि आपके यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है ये रेख्ता का, हज़ारों चीज़ें महफूज कर ली गई हैं और मज़ीद काम हो रहा है। हमारे यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा काम। मैं बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ और जाके शर्म दिलाऊँगा उन लोगों को कि तुम लोग क्यों, क्या तुम कर रहे हो। देखो ये काम वहाँ किस मुस्तैदी से और कितनी लगन के साथ हो रहा है। याद आए तो दिल। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, रास्ता दुश्वार गुजार है और मंजिल दूर, लेकिन मुसाफिर दीवाने हो तो फासलों की परवाह नहीं करते। सुहेल अली, BBC दिल्ली। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज़ राजा के साथ BBC का इंटरव्यू और साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन का मकबरा तबाह होने की खबरें आप सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसके अलावा शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया तक इंसानी स्मगलरी की खबर भी इस वक्त काफ़ी मकबूल है। और अब जिक्र क्रिकेट का। पाकिस्तान आयरलैंड को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। आयरलैंड में पाकिस्तान की जीत की खुशी न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि इंडियंस ने भी मनाई। मैच के बाद इंडियन शायकीन ने बैंड बजाया और पाकिस्तानी फैंस ने भंगड़ा डालकर अपनी टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की खुशी मनाई। अगले राउंड में इंडिया का बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। आयरलैंड में हमारे साथी आदिल शाहजेब से बात करते हुए पाकिस्तानी फैंस ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान अब क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देगा। जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा जीवे जीवे पाकिस्तान को स्पेशली सिडनी से सपोर्ट करने आए हैं और हम आज गेम जीत गए। हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, सरफराज ने बहुत अच्छा खेला, हमारी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब बहुत बेहतरीन था।
बहुत खुश हैं, हम सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय किया मैच में और इंशाल्लाह ताला हम क्वार्टर फाइनल में अब यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा और यहीं पे इसको बीट करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला 92 की हिस्ट्री रिपीट करेंगे। इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा है, इंशाल्लाह। I love cricket. I love Pakistanis. We are brothers still. No matter. We are It was a massive party apart from the cricket game. Indians came to support Pakistan. We danced all day. We had so much fun. We had food and we had music, a lot of music. We had so much fun and we had a massive party. पाकिस्तान जीत गया है। आज हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम वर्ल्ड कप लेके जाएंगे। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। यहाँ हमारे पुराने प्रोग्रामों के अलावा क्रिकेट के शायकीन के लिए अब आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप से मुतल्लिक़ खुसूसी प्लेलिस्ट भी मिलेगी। BBC उर्दू के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज के प्रोग्राम की बड़ी खबर लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 2 गिरजा घरों पर ख़ुदकुश हमलों के बाद शहर में कशीदा सूरत हाल और मसीही बिरादरी में पाए जाने वाले गम और गुस्से के बारे में थी। आपने शान तासीर की गुफ्तगू भी सुनी कि उन्होंने अपने वालिद पंजाब के साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल पर खून बहा की पेशकश क्यों मुस्तरद की। ये तो था आज का सरबीन और कल हमारे प्रोग्राम में देखिएगा कराची की नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी नापा में जारी चौथे बैन अक़वामी थिएटर फेस्टिवल का अहवाल, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड के थिएटर ग्रुप भी हिस्सा ले रहे हैं। कल शाम 7:30 बजे आज न्यूज़ और bbcurdu.com पर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़ की को अब इजाज़त दीजिए।